Hello lovely kids. Today in this video we are going to read page number 45 of our book Wow English series 7 for class 7. Dear kids, as you know, in the previous video we started reading of the chapter Kabuliwala, and we have read page number 43 and 44 of this story, where we read about a girl who was 5 years young and a paddler, Kabuliwala. How they became friends and how they just talked for a long time, that we have studied on page number 43 and 44. Now please open your book on page number 45. Keep a pencil in your hand so that you can note down the meanings, the hard words in your notebook, in your book itself. Please open page number 45. So this is the picture given on page number 45. You can see on your screen. Starting of the page 45 is, Minnie's mother is unfortunately a very timid lady. So this timid means what? Timid means who is very fearful, जो बहुत डरी रहती हैं. What is that? Timid means fearful, right? कि जैसे आपकी मम्मी कहती है कि लोगों से कुछ लेके नहीं खाना, लोगों के पास नहीं बात करनी. So every mother is of that same nature, right? So Minnie's mother was also of that nature. So she was full of doubts about Kabuliwala and used to beg me to keep a watchful eye on him. So this me is who here? Minnie's father. So उसके पापा को वो हमेशा कहती रहती कि थोड़ा उनको देखते रहा करो, उन पे नज़र रखा करो कि मतलब जब मिनी उसके पास होती है तो ये सही नहीं है कि वो उससे बात करे और समथिंग लाइक दैट, कि मीन्स इट इज़ एज यूजुअल कि डोंट बिलीव ऑन स्ट्रेंजर्स, समथिंग लाइक दैट, right? But because Minnie was too young to understand that, so that's why she is saying to her husband, the mother is saying to her husband to just keep an eye on him. Him who means Kabuliwala. So once a year in the middle of January, Rahmat, who is this Rahmat? Rahmat is Kabuliwala, returned to his country, and as the time approached, he would be very busy going from house to house collecting his dues. तो साल में एक बार वो अपने घर जाता था, कहाँ पे? अफ़गानिस्तान, काबुल में, और फिर वापस आ जाता था. और फिर जब वापस आता था तो अपने जो भी उसके डेप्ट्स होते थे, ठीक है, तो उनको चुकाने में, कलेक्ट करने में वो लग जाता था. डेप्ट्स मीन्स व्हाट? जो कर्ज उसने जो लिया होता था, उधार लिया होता था, दैट इज़ व्हाट. लिया होता था, कई बार किसी को उधार दिया होता था. सो उस कलेक्शन में बिजी हो जाता था, हाउस टू हाउस, राइट. वन मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock आई हर्ड एन uproar in the street. अप्रोर मीन्स जैसे जो मिक्स्ड आवाज़ें आती हैं बहुत, जैसे जब कोई झगड़ा हो जाता है गलियों में तो उस तरह से कुछ आवाज़ें बहुत सारी आने लगती हैं ना. तो साउंड मीन्स दैट्स अ नॉइज़ इन द स्ट्रीट. एंड लुकिंग आउट सा रहमत बीइंग लेड अवे बाउंड. लेड अवे बाउंड मीन्स उसको क्या करा जा रहा था? उसको बांध के, उसको पकड़ के लेके जाया जा रहा था. बिटवीन 2 पुलिसमैन, राइट. तो 2 पुलिसमैन थे उसके इधर उधर और उन्होंने उसको पकड़ रखा था. There was blood stains. Stains means what? The marks, धब्बे, on the clothes of Kabuliwala, and one of the policemen carried a knife. और एक पुलिसमैन ने क्या पकड़ रखा था? एक नाइफ पकड़ रखा था. Hurrying out, I stopped them and inquired what is it all meant. So the father of Minnie, he was also excited to know that what is the matter, right? He wants to know that what was the problem and why he was led away bound. I gathered that certain neighbor had owed. Owed means bakaya, ठीक है. The peddler something for a Rampuri shawl, but had falsely denied having bought it, and that in course of the quarrel, Rahmat had struck him. अब क्या हुआ एक बार कि एक पड़ोसी ने, ये जो फादर ऑफ मिनी है, उनके एक पड़ोसी ने, उनको पता चला जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ और क्यों रहमत को, ये जो काबुलीवाला, उसको क्यों ऐसे पकड़ के लेके जाया जा रहा है. सो ही केम टू नो कि एक जो नेबर है उनका, उसने कोई रामपुरी शॉल उससे लिया था और उसके पैसे बकाया रह गए थे देने. लेकिन अब जब रहमत कलेक्शन के लिए गया है, सो वो मुकर गया. अब वो मना कर रहा है कि मैंने तो शॉल ली नहीं, डिनाई कर रहा है,
ठीक है, कि मैंने तो शॉल ली नहीं और मुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने तुम्हारे। तो इस वजह से रहमत को गुस्सा आ गया और रहमत हैड स्ट्रक हिम, और रहमत ने उसको मारा, क्योंकि ही वॉज अ पुअर मैन, दैट्स व्हाई ही वॉज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ही वॉज जस्ट डूइंग दिस, he was a paddler and he was just moving, he was just walking house to sell his goods, right? So अब उसको गुस्सा तो आना नेचुरल था। Suddenly in the veranda of my house appeared my little Minnie with her usual exclamation, और जब मिनी ने भी शोर सुना तो वो भी आ गई खिड़की पे वहीं पे, ओ काबुली वाला, because she was a very young kid and she did not know that what is happening or what is the matter. So she started as usual she started crying to see Kabuli wala. Are you going to father-in-law's house? Rahmat laughed and said, just where I am going little one. So रहमत हंसता है कि हाँ आज तो मैं सच में ही वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट पेज पे हमने पढ़ा था कि वो मजाक जब करते, जब वो जोक करते थे एक दूसरे से, तो वो कहता था कि ससुराल कब जाओगी। तो ससुराल को उसने किसकी तरह से बोला था कि ससुराल इज़ लाइक अ जेल, राइट, बट नाउ ट्रूली ही इज़ गोइंग टू जेल। सो देन सीइंग द रिप्लाई डिडंट अम्यूज़ द चाइल्ड, तो उसको लगा कि नेचुरल है, क्योंकि छोटा बच्चा, उसको पता नहीं कि व्हाट इज़ जेल, उसको लगा कि मजाक कर रहा है। He held up his fatted hands. Fatted hand means जो हथकड़ी लगी होती है, locked hands, and he said, I would have thrashed that old father-in-law, but my hands are bound. वो कहता है कि मैं उस old father-in-law को मतलब थ्रैश कर देता, वो बुरी तरह से सबक सिखाता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं अभी, ठीक है, जिसकी वजह से वो जेल जा रहा है। He is saying that. रहमत was sentenced to a few years of imprisonment. Sentenced means what? Sentenced होता है सज़ा सुनाना, तो ही वॉज सेंटेंस्ड टू अ फ्यू ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि उसको थोड़े टाइम के लिए जेल में रहना है, कुछ सालों के लिए जेल में रहना, उसको ये सज़ा मिली। नाउ प्लीज़ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ईयर्स लेटर ही हैड मेड अरेंजमेंट्स, वी हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर आवर मिनीज मैरिज। सो अब बहुत साल बीत गए और अब मिनी अब बड़ी हो गई है, तो मिनी की शादी वाला दिन है। From early morning, noise and bustle and pervaded the house. There was no end to hurry and excitement. My Minnie was to be married tonight. अब father is saying that अब थोड़े दिनों बाद जो है मिनी की शादी है। तो सुबह से ही जैसे घर में शादी वाले घर में जो माहौल होता है वही माहौल है, हसल बसल प्रिवेडेड, सारे घर में लोग भरे हुए हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत फेस्टिविटीज़ हो रही हैं, राइट। एंड देयर वाज नो एंड टू हरी एंड एक्साइटमेंट, और बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं। माई मिनी वॉज टू बी मैरिड टुनाइट, बिकॉज आज मिनी की शादी है। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स एंड द फादर ऑफ मिनी इज़ सिटिंग इन हिज स्टडी, एंड कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं, क्योंकि शादी वाला घर है तो हिसाब किताब पैसे वैसे की तो ज़रूरत है उनको। सो आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स व्हेन समवन एंटर्ड सैल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली एंड स्टूड बिफोर मी। जैसे ही उन्होंने नोटिस किया कि वो अपनी स्टडी में बैठे हैं, तो वैसे ही वहाँ पे कौन आ गया, एक आया कोई, और उन्होंने उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया मिनी के फादर ने कि अरे ये तो रहमत है, काबुली वाला है। When did you come, रहमत? I asked him. तो उन्होंने पूछा उससे कि कब आए तुम जेल से। So he said last evening, he said I was released from jail. Released from jail कि मुझे छोड़ दिया गया जेल से। There are ceremonies going on. I said I'm busy. Could you perhaps come another day? So अब फादर क्योंकि बिज़ी है, मिनी की शादी है, और वैसे भी जेल से कोई आया है तो उसको मतलब उन्होंने उसको पकड़ा गया कि लोगों को उसने किसी को मारा है और समथिंग लाइक दैट। सो फादर उसको ज़्यादा वेलकम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं कि तुम किसी और दिन आना, अभी मैं बिज़ी हूँ। एट वंस ही रिटर्न्ड टू गो, और जैसे ही फादर ने कहा कि अभी मैं बिज़ी हूँ तुम जाओ, वैसे ही टर्न हुआ वो। बट एज ही रीच्ड द डोर ही हेजिटेटेड एंड सेड, May I not see the little one, sir, for a moment? Little one who is talking? He is talking about Minnie, ठीक है? But Minnie is not little one now. She has been young now and she is getting married today. It was his belief that Minnie was still the same, और उसको ये लग रहा था काबुली वाला को कि मिनी अभी भी बच्ची है। He had pictured her running up to him as she used to calling, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला, उसको ऐसे ही दिखाई दे रही है, ठीक है, उसको पता ही नहीं चला कि वो बड़ी भी हो गई है।
He has imagined so that they would laugh and talk together just as old. उसको यही इमेजिनेशन कर रहा था, इसी चीज़ को विजुअलाइज कर रहा था कि कैसे मिनी और मैं बहुत टाइम तक बैठे बातें करते रहते थे, कैसे वो मुझे बोलती थी ओ काबुली वाला समथिंग लाइक दैट, और कैसे हम बातें करते रहते थे और कैसे हंसते थे बहुत बहुत टाइम तक. I said again, there is a ceremony in the house and you will not be able to see anyone today. तो फादर ने फिर थोड़ा सा बोला कि अरे आज तो यहाँ घर में शादी है और कुछ तुम किसी को नहीं मिल पाओगे. The man face fell. The man's face, whose face? Kabuliwala's. He looked wistfully at me for a moment and said, so this wistfully means what? Sadly. और उसने मुझे कहा, मतलब उसने थोड़ा सा परेशान हो गया, सैड हो गया. गुड डे सर एंड वेंट आउट. तो फाइनली वो वहाँ से चला गया, मतलब जाने लगा. आई फेल्ट लिटिल सॉरी. आई हूँ मिनीज़ फादर. सो जैसे वो बेचारा अपना एक सैड फेस लेके जा रहा था, ठीक है, और कहा कि ओके आई एम गोइंग, गुड डे, तो वैसे ही मिनी के फादर को लगा कि नहीं ये सही नहीं है, उसको वापस बुला लेना चाहिए. उनको सॉरी फील हुआ एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक. When he turned and came close up to me, holding out his offering and said, I brought these few things, sir, for the little one. और वो कुछ मुट्ठी में कोई चीज़ फादर को दे रहा है, कोई चीज़ जो वो मिनी के लिए लेके आया. जैसे वो यूजुअली लेके आता था, कभी कुछ काजू, कभी बादाम, कभी किशमिश, तो वैसे ही कुछ वो चीज़ें मिनी के लिए लेके आया था. तो उसने उसके फादर को दे दी कि ये लिटिल वन कौन है यहाँ? मिनी. विल यू गिव देम टू हर, कि आप क्या दे दोगे उसको? I took them and was going to pay him, but he caught my hand and said, "You are very kind, sir." So मैंने उसको पैसे देने की कोशिश की बदले में, राइट, मतलब मिनी के फादर कह रहे हैं कि मैंने उसको पैसे देने की कोशिश करी, बट उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए. डू नॉट ऑफर मी मनी, यू हैव अ लिटिल गर्ल, आई टू हैव वन लाइक हर, कि मेरी भी उतनी ही छोटी सी बच्ची है जितनी आपकी है, राइट, इन माई होम टाउन. कहाँ? अफ़गानिस्तान में. आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट्स फॉर अ चाइल्ड, कि मैं जब उसके बारे में, मतलब मुझे वो ऐसे लगता है कि जब मैं आपकी बच्ची को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जैसे मैं मेरी बेटी से बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैं मतलब वहाँ तो बहुत दूर है तो नहीं जा सकता हूँ, तो मैं इस लिए मिनी को चीज़ें, मतलब वो मुझे अपनी बेटी जैसी ही लगती है, तो इसलिए मैं उसके लिए बहुत ये जो फ्रूट्स हैं लेके आता हूँ. नॉट टू मेक अ प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ, तो प्लीज़ आप मुझे पैसे मत दीजिए इसके लिए. Saying this, he put his hands inside his big loose robe. Robe is something coat type of, loose coat उसने पहन रखा था. And brought out a small and a dirty piece of paper. और उसमें से उस loose robe की pocket में से उसने एक dirty piece of paper निकाला. With great care he unfolds this. और बहुत ही ध्यान से उसने उस पेपर को खोला. एंड स्मूथड इट आउट विद बोथ ऑफ द हैंड्स ऑन माई टेबल. वो जो टेबल पड़ा था उसने बहुत उसको सही किया. वो जो पेपर उसने अपने रिंकल्ड और बहुत पुराना पेज था, तो उसको अपने उस टेबल पे, मिनी के पापा के टेबल, वहाँ जो ऑफिस जो स्टडी में जो टेबल पड़ा था उसके ऊपर रख के बहुत स्मूथ किया, ऐसे सही किया. इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मीयर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर. तो उसमें क्या थे, छोटे छोटे हाथ बने हुए थे इंक से, मतलब इंक के स्मीयर्ड थे. जैसे वो क्या क्या होता है, ट्रेस किया होता है ना, अपने इंक्स को इम्प्रेशन दिए होते हैं, ठीक है. तो वो लगे हुए थे, उस पर हाथ छपे हुए थे इंक से, छोटे छोटे, फ्लैट ऑन द पेपर. अब वो हाथ किसके थे? वो हाथ थे उसकी खुद की बेटी के, ठीक है, जो कि वो उसने अपनी पॉकेट में डाले हुए थे. तो जब वो अपने घर से आया था तो वो इम्प्रेशन लगवा के लेके आया था अपनी बेटी के इंक से लगे हुए हाथों के, राइट. तो उस पेज को उसने निकाला और ही वॉज़ वेरी सैड. ही वॉज़ एक्चुअली रिमेंबरिंग हिज डॉटर, राइट, क्योंकि बिकॉज वो बहुत गरीब है तो उसको यहाँ हमारी कंट्री में आना पड़ता है, सेल करने के लिए आना पड़ता था हर साल, और अपने घर से दूर रहना पड़ता था. सो अब वो अपनी बेटी के पास जा नहीं सकता है, लेकिन उसको याद तो आ रही है ना, है ना. तो इसलिए उसने वो पेपर अपने साथ रखा. टीयर्स केम टू माई आइज़. आई सेंट फॉर मिनी. और उस टाइम में ना कोई फ़ोन, ना कोई व्हाट्सअप, ना कोई वीडियो कॉल, ऐसा कुछ भी नहीं होता था. तो इसलिए उसने वो इम्प्रेशन वाला पेपर अपने बच्चे के हाथ का अपनी पॉकेट में रखा हुआ था हमेशा. टीयर्स केम टू माई आइज़. और ये देख के उसकी आंखों से भी, फादर ऑफ मिनी, उसकी आंखों से भी पानी आ गया. इमीडिएटली फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट. और जैसे ही उन्होंने उस पेपर को देखा कि द मैन इज़ रियली वेरी सैड, सो अभी इमीडिएटली उन्होंने अंदर से किसको बुलाया? मिनी को बुलाया. सेंट फॉर मीन्स टू कॉल. सेंट फॉर मीन्स टू कॉल. इमीडिएटली एकदम से इनर अपार्टमेंट, अंदर वाले घर से मिनी को बुलाया.
clad in red silk. Clad means she was dressed in. Clad is what? Clothed, right? So she was clothed in the red sari. She who? Minnie. And why she was clothed in red sari? Because आज उसकी शादी है. Of the wedding day with sandal paste. Sandal is what? Sandal is what is that? Chandan. Chandan का paste उसने लगा रखा है और अपने माथे पे, forehead पे. And adorned as young bride. ये adorned means सजा होना, right? She was dressed with. She was looking gorgeous actually as a young bride. Minnie came and stood bashfully before me. So this bashfully means what? Shyly. Shyly means what? शर्माते हुए. तो जैसे वो दुल्हन शर्मा रही थी, राइट? तो वहाँ पे वो खड़ी होगी आके. द काबुलीवाला लुक्ड अ लिटिल स्टैगर्ड. स्टैगर्ड मीन्स शॉक्ड. अरे इतनी बड़ी हो गई मिनी. उसने तो छोटा सा इमेजिन किया था, वो छोटी विजुअलाइज कर रहा था उसको. ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप. और वो वही चीज़ें याद कर रहा था. एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस? कि सच में तुम आज अपने ससुराल जा रही हो? बिकॉज उसको दिख गया कि वो उसकी शादी. सो द काबुलीवाला लुक्ड एट लिटिल स्टैगर्ड. बहुत मतलब वो शॉक्ड हो गया. ही कुड नॉट रिवाइव द फ्रेंडशिप. एट लास्ट स्माइल एंड सेड, लिटिल वन, आर यू गोइंग टू फादर इन लॉज हाउस? कि सच में ससुराल जा रही हो क्या? जैसे जब वो छोटी थी तो उसके साथ हमेशा मजाक किया करता था. बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ. लेकिन अब मिनी बड़ी हो गई और उसको पता है कि फादर इन लॉ का हाउस क्या होता है. ठीक है, वो जेल नहीं होता. तो जब वो छोटी थी तो मजाक करती थी. एंड शी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड. और वो उस तरह से उसको जैसे वो पहले आंसर देती थी तो वैसे नहीं आंसर दिया. शी फ्लश्ड एट द क्वेश्चन एंड स्टूड बिफोर हिम विद हर ब्राइड लाइक फेस टर्न्ड डाउन. उसने उसको कोई आंसर नहीं दिया और उसने अपना सिर झुका के ही रखा. आई रिमेंबर्ड द डे व्हेन द काबुलीवाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट एंड आई फेल्ट सैड. आई अगेन फादर ऑफ मिनी. सो फादर ऑफ मिनी को ये याद है कि कैसे वो दोनों मिले थे, कैसे मिनी उससे पहले डरती थी, फिर कैसे वो बातें करते थे, कैसे वो फ्रेंड्स बने. व्हेन शी हैड गॉन, रहमत हीव्ड डीप साई. जैसे ही मिनी गई अंदर वैसे उसने एक बहुत गहरी सांस ली. एंड सेट डाउन ऑन द फ्लोर. The idea had suddenly come to him that his daughter too must have grown up in this long time. और वैसे ही उसको ये अचानक से याद आता है, क्योंकि फादर के लिए तो बच्चा हमेशा छोटा ही होता है. ठीक है, तो अब उसको मिनी को देख के याद आ रहा है कि अरे मेरी बेटी भी तो इतनी बड़ी हो गई होगी जितनी मिनी बड़ी हो गई है. सो इसलिए वो बहुत दुखी हुआ. ठीक है, द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन अप इन दिस लॉन्ग टाइम. और ही वॉज वेरी सैड. I took out a bank note and gave it to him, saying, go back to your town, own daughter Rahmat, in your own country, and may the happiness of your meeting bring good fortune to my child. और अब क्या हुआ, फादर, बिकॉज मिनी के फादर भी बहुत डिस्टर्ब हो गए ये देख के, तो उन्होंने एक नोट निकाला और रहमत को दिया और उसको ये कहा, एडवाइस किया कि तुम रहमत अपनी कंट्री, अपने देश वापस चले जाओ अपनी बेटी के पास. ठीक है, क्योंकि अब उसको तुम्हारी भी बहुत ज़रूरत है. वो भी क्या हो गई है, वो भी अब जवान हो गई है. ठीक है, उसकी भी शादी करनी है. तो उसको जब वो बहुत छोटी थी तो तब उसको मिल के आए हो, तो अब उसके पास तुम्हें जाना चाहिए. और होप करता है, एंड मे हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड. और तुम्हारा मिलना मेरी बेटी के लिए खुशकिस्मत हो. सो दैट ही होप्स. Having made this present, I had to curtail some festivities. Curtail means to reduce. Some of the festivities. Festivities होते हैं जो भी मतलब शादी में जो भी customs, रीति रिवाज जो भी होते हैं, तो उसमें उसको शामिल होना था. But to me, the wedding feast was all brighter for the thought that in a distant land, a long lost father met again with his only child. लेकिन उनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी कि अगर वो वहाँ चला जाए, मतलब रहमत अपनी बेटी के पास चला जाए, तो एक बिछड़ी हुई बेटी को उसका फादर दोबारा से मिल जाएगा. So this was the story written by Rabindranath Tagore. I hope you enjoyed the story. Thank you very much. We will do question and answers in next part of the video. Till then, stay safe. Keep reading, keep enjoying. Thank you very much. I request you to read this story and tell this story to your parents once again. Thank you very much.